Recording in progress. Other relation of torque, which is tau is equal to I alpha, which we call it Newton's second law in the rotational motion. Suppose this is the object rotating about this vertical axis with the constant angular acceleration alpha. ये घूम रही है axis के about. We consider 3 points m1 here at perpendicular distance r1 having acceleration a1, m2 here, second particle here, acceleration a2 and distance is r2, third one is here. So they will have circular motion like this, different circular motion होंगे उनके. तो alpha is the constant angular acceleration and therefore acceleration will be r alpha. Acceleration जो होता है r alpha होता है. अगर रेडियस को हम a alpha से मल्टीप्लाई करें तो एक्सेलेरेशन मिल जाता है. तो अगर अपने पास एक्सेलेरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मिल जाता है. तो फोर्स ऑन m1 विल बी f1 which is m1 into a1 but a is equal to r alpha, so it will be a की वैल्यू पुट कर देंगे r alpha, m1 into r1 into alpha. Got it? ठीक है. a is equal to r alpha पढ़ा था हमने. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन था. a in fact will be tangential acceleration, but यहाँ पे हम उसको we will write acceleration only. ठीक है. and that will be equal to r alpha. तो ये फोर्स मिल गया फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर. टॉर्क लिखना है तो r परपेंडिकुलर इंटू r परपेंडिकुलर, यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, r परपेंडिकुलर लिख दो. चलो r परपेंडिकुलर r1 r2 and r3 are perpendicular distance. तो r परपेंडिकुलर इंटू f1. तो r परपेंडिकुलर इज नथिंग बट r1. ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा के साथ, a के साथ सॉरी. तो r परपेंडिकुलर इज r1 इन द फर्स्ट केस. f1 की वैल्यू बताइए. ये ऊपर है f1 की वैल्यू m1 r1 अल्फा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. यहाँ पर क्या आएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा. सेकेंड पार्टिकल के लिए m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा. थर्ड के लिए m3 r3 स्क्वायर इंटू अल्फा. अल्फा इज सेम फॉर ऑल. तो ये टॉर्क आ गया फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल. एक का हमने कैलकुलेट किया, सेकेंड एंड थर्ड का डायरेक्ट लिखा. तो नेट टॉर्क विल बी एडेड अप. ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑल आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस. ऑल द टॉर्क्स विल बी एडेड अप. तो ऐड कर दो सबको. कैन यू सी ना? अल्फा कॉमन ले लिया हमने and m1 r1 square plus m2 r2 square and so on. What is this term? ब्रैकेट वाला टर्म क्या है बोलिए? This is nothing but a moment of inertia of the point masses. हमने इसके छोटे छोटे point masses ले लिए थे. तो it will be the total moment of inertia of the body, m1 r1 square plus m2 r2 square. तो I will be moment of inertia of the body of object कर लो. Alpha is angular acceleration. तो tau is equal to I alpha. It is similar to that ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, F is equal to ma होता है ना. तो F का काउंटर पार्ट टॉर्क है, M का काउंटर पार्ट I है, A का काउंटर पार्ट अल्फा है. मतलब वॉट एवर द रिलेशन वी हैड इन द ट्रांसलेशन मोशन, सिमिलर टू दैट वी आर हैविंग द रिलेशन इन रोटेशनल मोशन. गेटिंग और नॉट? इसको न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं. ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए था न्यूटन सेकंड लॉ. सिमिलर इज फॉर रोटेशनल मोशन. नाउ बोथ द फार्मूलाज विल बी यूज्ड. r क्रॉस f को भी हम यूज करेंगे एंड I अल्फा बोथ आर इक्वल टू टॉर्क. दोनों एक साथ यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग. दोनों टॉर्क के लिए
Any difficulty in this? बोलिए. Tau is equal to I alpha is the another relation for torque which is obtained from R perpendicular into F only. यहाँ देखो R perpendicular into F से ही हमने लिया, this which is the main formula of torque. That is the basic formula. Definition comes from here only. Got it? Note कर लो इसको. And let's do further points. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Note down. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's see NCERT book solved example based on this point. जैसे ये देखिए क्वेश्चन. Solve example number 15 of this chapter. Cord of negligible mass is wound around the rim of the flywheel. Flywheel means disc. Flywheel means disc of the mass 20 kg. इसका 20 kg mass है. And radius is 20 centimeter. That will be 0.2 meter. A steady pull of 25 Newton. This one force is 25 Newton. Is applied on the cord as shown in the figure. Flywheel is mounted on the horizontal axle. ये यहाँ पर axle होगा. Axle means pin जैसा रहेगा, on which it can rotate with the frictionless bearings. यहाँ पे bearing भी रहते हैं, उसमें rotation easy होता है. Friction is not there in the bearings. Calculate or compute the angular acceleration of the wheel. अल्फा निकालना है इसका ना. तो अल्फा निकालने के लिए टॉर्क के दोनों फार्मूले यूज कर लो. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा which is also R cross F. So you can get the value of alpha directly. अभी जो हमने फार्मूले सीखे दोनों यहाँ पे लगा दो एक साथ. देखो tau is equal to I alpha which is R cross F, R perpendicular into F. I कितना होगा? डिस्क है वो हाफ एम आर स्क्वायर. ओके. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये अपने परपेंडिकुलर एक्सिस से, यहाँ पे जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से घूम रही है ऐसे. एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाफ एम आर स्क्वायर. R perpendicular is nothing but a radius of the disk and force is also given. एक R तो कैंसिल हो जाएगा. Half into mass. Mass is 0. Mass is 20 kg. Radius is 0.2. Alpha is to be done. Calculated. Force is 25. तो देखो अल्फा के लिए सॉल्व करो. ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 25/2. 10 multiplied by 0.2 will give you 2.
2 only. This is coming to be 12.5. Unit क्या होती है अल्फा की? What's the unit of alpha? Rate of change of angular speed or angular velocity, radian per second square. Clear? Clear to everyone? This is your solved example. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. right. Any difficulty in this question? Important है ये. Any difficulty? No, sir. No, sir. Not done. ये जो R perpendicular is this one. R perpendicular is nothing but a radius of the disk. R perpendicular का मतलब क्या होता है? Axis of rotation से perpendicular डालो, line of force के ऊपर, line of force is like this. ये 90 degree. तो this is R perpendicular. This is nothing but a radius of the disk. Radius of the flywheel, which is nothing but a disk. Okay. Let's see further. जैसे ये एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. Let's see what is this. Torque of equal magnitude are applied on the hollow cylinder and solid sphere, both having the same mass and radius. Cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire greater angular speed after a given time? बोलिए. कौन सा ज्यादा फास्ट घूमेगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. Inertia will oppose the rotation. The object having lesser moment of inertia will have more angular acceleration. देखो tau is equal to I alpha है ना. Alpha is equal to torque upon I. तो सेम टॉर्क लगा रहे, सेम मैग्नीट्यूड का टॉर्क लगा रहे. Since torque is same, therefore alpha inversely proportional to I. Alpha inversely proportional to I. Object having less moment of inertia will have more angular acceleration. Therefore, अगर डिस्क का कितना होता है?
हॉलो सिलेंडर का डिस्क के बराबर होता है? नहीं, हॉलो सिलेंडर का रिंग के बराबर होता है। हॉलो सिलेंडर का mr² और सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का कितना होता है बोलिए? Sir, 2/5 mr². Sir, 2/5 विच इज mr². लेस? मास एंड रेडियस आर गिवन सेम, तो ये दिस इज लेस, दिस इज 0.6 mr² एंड हॉलो सिलेंडर इज हैविंग 1 mr²। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है दैट विल रोटेट फास्टर। सॉलिड स्फीयर इज द आंसर, राइट आंसर, गॉट इट। जिसका इनर्शिया कम है दैट विल अपोज लेस, वो रोटेशन मोशन को, इनर्शिया मींस व्हाट? अपोजिशन टू रोटेशन। Less moment of inertia, less opposition, more faster it will rotate for the particular torque. Clear or not? So answer is solid sphere. Any difficulty here? Clear to everyone? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. As some of you have the full first book test in your school examination, up to chapter number next. Am I right? आपके जो टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम में दे आर अप टू ग्रेविटेशन, आई थिंक। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So we can have the test of combined chapters. Already we are done for the work power energy. उसके बाद दो चैप्टर और हो जाएंगे, एक तो ये और एक ग्रेविटेशन। So as you are going for first book test in your term 1, so we can also add these two chapters in the subjective test which was to be conducted. तो ये दोनों चैप्टर भी प्रिपेयर करते रहिए आप लोग। तो all the up to chapter number 8 we can have the test, जो भी होगा अभी आपके स्कूल टर्म फर्स्ट टर्म से पहले we will conduct, so that you should be ready for that. When are your examinations? First term. Sir, it will start from 1 December. From 1 December 29 itself. or 29. 29 Yes. itself. So we cannot complete Yes. that gravitation chapter, है ना? That you have to do your own. 9th में किया था वो वैसा ही टाइप है। Is it complete chapter gravitation or part of the chapter? Sir, complete. Sir, complete. Complete है, तो ये हमें finish करने में 2 more days are needed, then we can start the gravitation. चलो ठीक है, देखते हैं, that you can prepare yourself. Sir, physics तो 8 को है. Sir, physics तो 8 को 8 है. पे बीच में गैप है, so that we can Sir, continue एक with दिन that की है. chapter also. Sir, एक दिन की है. Sorry, but आपको every school or some of the school have the exam on first week and others have the
they are together to the all places? No idea. ठीक है, we'll see what can be done. Chemistry course is done. Chemistry and maths. नो सर केमिस्ट्री कोर्स भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो तुम लोग के स्कूल में ये हो गया, ये सब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ग्रेविटेशन भी हो चुका है क्या? मैंने Talking about your school. नॉन अटेंडिंग क्लासेस कर। Sorry. सर आई हैव चोजन नॉन अटेंडिंग स्कूल। Okay, now those who are having the first term examination up to the gravitation, is it done? Gravitation is done in your school? This is all done in your school. They are going fast. No response coming. Anyway, चलो next topic is the angular momentum of the particle. जैसा हम लोगों ने टॉर्क का सीखा है, बिल्कुल सेम, exactly same concept is for the angular momentum. Diagram is also same. Only thing यहाँ पर force था. In place of force, we are writing linear momentum. So consider the particle of mass m and linear momentum p at position vector r here. Particle p, consider particle p of mass m यहाँ पर है, having position vector r and momentum p. All right. Relative to the origin के respect में उसका position vector r है. The angular momentum symbol we are taking capital L of the particle with respect to origin O is given by r cross p. जैसे टॉर्क का क्या था, r cross f था. Similarly, angular momentum is r cross p. F is replaced by the p. The rest of the things remaining same. So angular momentum with respect to origin is r cross p, where r is the position vector and p is the linear momentum of the particle. Rest of the points are same as in the torque. बाकी सारे पॉइंट सेम है. कौन कौन से थे? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू r and p, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड प्लेन ऑफ p. इसमें जो इस प्लेन में है इसके परपेंडिकुलर आएगा. एंगुलर मोमेंटम गिवन बाय राइट हैंड रूल. तो ये पॉइंट सेम है. मैग्नीट्यूड में साइन थीटा आ जाएगा बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है. ठीक है. एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. ऐसा यूनिट क्या होगा? पोजीशन वेक्टर का मीटर है, लीनियर मोमेंटम का m इंटू वी, kg मीटर पर सेकेंड. तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंड नाउ सिंस दिस इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा. अपोजिट एंगल. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने लाइन ऑफ मोशन ऑफ लाइन ऑफ मोमेंटम के ऊपर. दिस विल बी r sin थीटा because this will be hypotenuse. तो r sin थीटा. तो r sin थीटा को हम r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं या फिर इसका परपेंडिकुलर p का परपेंडिकुलर वेक्टर ले सकते हैं. यहाँ पर this will be p perpendicular which will be p sin theta. p परपेंडिकुलर लिया तो r फुल लेना पड़ेगा ये. तो one of them can be taken perpendicular to the another one. So r perpendicular into p. R perpendicular the perpendicular distance of perpendicular distance of directional line of p. ये डायरेक्शनल लाइन है p की, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन. और p परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला p sin थीटा हो जाएगा. इज द कंपोनेंट ऑफ p परपेंडिकुलर टू r. तो दोनों में से एक का परपेंडिकुलर, p का परपेंडिकुलर लेंगे तो r फुल लेंगे. और अगर हमने r का परपेंडिकुलर लिया, ये r ये इसका इसके
इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेने के लिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी आर साइन थीटा। ठीक है, तो सिमिलर टू द टॉर्क है पूरा, कुछ नया नहीं है इसमें। L will be 0 if R is 0 और P is 0 और theta is 0 और 180। ये चारों कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, है ना। 0 मतलब ये कब होता है, जब मोमेंटम की लाइन ओरिजिन से जा रही है, मोमेंटम भी ओरिजिन से पास हो रहा है, उस समय एंगुलर मोमेंटम विल बी 0 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर line of force or line of momentum passes through the origin, in that case torque is 0, angular momentum is 0, है ना। लाइन जैसे टॉर्क की लाइन, फोर्स की लाइन ओरिजिन से जाती है तो फोर्स 0 हो जाता है टॉर्क, ऐसे मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगल ही नहीं बनेगा कोई, इस लाइन के साथ एंगल बनना चाहिए ना, तभी एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, angular momentum has the same dimension as that of the Planck constant। यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीखा था हमने, प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है एंगुलर मोमेंटम की भी सेम होती है। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट इज आर क्रॉस पी, आर इज द पोजीशन वेक्टर, पी इज द लीनियर मोमेंटम। इट इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और सम अदर पॉइंट। किसी पॉइंट के रेफरेंस में एंगुलर मोमेंटम हमें बताना पड़ता है ना, किसके पॉइंट, वो पॉइंट मेंशन करना पड़ता है, उसी से फिर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ होगा। गॉट इट। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम both are with respect to some point which generally is origin। All right, तो एक सॉलिड एग्जांपल लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का, ये वाला सॉलिड एग्जांपल है, देखिए। शो दैट angular momentum about any point of the single particle moving with the constant velocity remains constant throughout the motion। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई पार्टिकल है आपका, यहाँ से देखो ऐसे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसका मोमेंटम ये ऐसे हो गया ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा ना, p will be mv। तो एंगल क्या होता है r के साथ p का, ये r ऐसे जाएगा, r को हम ऐसे बढ़ाएंगे तो r इधर होगा, ये थीटा हो जाएगा ना, तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो अभी ये थोड़ा आगे चला जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो एंगल तो चेंज हो रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका लाइन ऑफ मोशन क्या है, ऐसा देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, सपोज इसको हम मान लें आर परपेंडिकुलर इज एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, इसको ए ले लो चलो। एंगुलर मोमेंटम इज आर परपेंडिकुलर इनटू पी, तो आर परपेंडिकुलर को हमने डिस्टेंस ए मान लिया, पी क्या है mv। तो इवन इफ इट इज गोइंग फॉरवर्ड तभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है, ए रह रहा है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट दे दी, देयरफॉर कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना था, परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से इजी हो गया ये। क्या किया हम लोगों ने, वी हैव जस्ट ड्रॉन, वी हैव एक्सटेंडेड द लाइन ऑफ मोमेंटम, ऐसे एक्सटेंड कर दी, ओरिजिन से हमें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं
यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ए मान लिया उसको थोड़ी देर के लिए। तो आर परपेंडिकुलर इनटू पी इज द सेकंड फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर परपेंडिकुलर इज ए, पी इज इक्वल टू एम बी, तीनों कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है, मास भी कांस्टेंट होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही बिकॉज लाइन ऑफ मोशन उसका फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, तो देयरफॉर कांस्टेंट। गॉट इट? So that's how you will prove it. I think you have to join again. Note down and join again with the same link. तो ये सेम लिंक रहेगा डेली जब तक न्यू नोटिस नहीं आता आपके लिए। इवन इफ आई एम नॉट सेंडिंग द लिंक, सेम वही है, आपको चेंज नहीं हो रहा वो। मेरे नाम से है, योगेश चंद्र के नाम से, यू कैन रीड इट, जस्ट इट इज देयर। If you have any difficulty, you can ask in this question. After the break, we'll continue with the further points of this important topic है इसके बाद। This is also important. Done? Okay, join again. I am ending it and join again. ठीक है?